the next topic in the DBMS is cardinality, which comes under the ER model. So cardinality is, what is cardinality? Cardinality is the number of entities to which the other entities can be related via the relationship, or we can say mapping. So there are different types of cardinality, that is one to one, one to many to one and many to many. So these are related with means टू अगर हम दो एंटिटीज़ लेते हैं तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, तो दो एंटिटीज़ किस तरीके से कनेक्टेड है, वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मनी है, दैट इज नोन एज कार्डिनल, किस तरीके से कनेक्टेड है थ्रू अ रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी. तो वन टू वन में क्या होता है, वन टू वन, वन टू वन का क्या मतलब होता है, एट मोस्ट वन. इट मीन्स व्हेन एट मोस्ट one instance of entity A is associated with one instance of entity B. मीन्स सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ का, रियल लाइफ टर्म में. जैसे मेरे पास एक ही आधार कार्ड होगा, एक बंदे के पास एक इंडिया में जितने भी लोग हैं तो क्या होगा, एक बंदे के पास एक आधार कार्ड नंबर होगा, या एक बंदे के पास पैन कार्ड एक होगा. मीन्स पर्सन वन, एक पर्सन के पास एक ही पैन कार्ड नंबर होगा. वैसे ही एक पर्सन के पास एक ही आधार कार्ड होगा, एक बंदे के पास आधार कार्ड नंबर दो तीन तो नहीं होंगे. मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आधार कार्ड नंबर. तो पैन कार्ड भी क्या होगा, वैसे ही पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड एक पर्टिकुलर बंदे को असाइन होता है, एक पैन कार्ड नंबर एक पर्टिकुलर पर्सन असाइन होता है. तो मैक्सिमम एट मोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम वन. तो ऐसे इतनी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है तो क्या होगा, एटमोस्ट वन का मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पैन कार्ड नंबर लिया ही ना. it is also possible that so many people are not registered for the PAN card and the Aadhaar card till now. So there is a condition, at most means maximum one. So one PAN card number is assigned to one person, or we can say one person assign only one PAN card number. Same as it is, one employee has assigned one department, and one department is assigned by one department is assigned to one person. Suppose I am a computer science, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे एक ही डिपार्टमेंट में होंगी. ये तो नहीं कि मैं मैकेनिकल या केमिकल के डिपार्टमेंट में भी मैं इन्वॉल्व होंगी. दैट इज नॉट, वन एम्प्लॉय हैव वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. सेम अगर एक कस्टमर है, और वी कैन से वन कस्टमर हैज टेक वन लोन, एक कस्टमर ने एक ही लोन लिया है, दैट इज वन टू वन. और वी से दैट person one has a unique PAN card number 1, person 2 has PAN card number 2, unique PAN card number is assigned to one person, one PAN card number is assigned to one person, and there is a possibility that the person 3 have not registered for any Aadhaar card or PAN card number till now. So it is also possibility that person 3 has not taken the Aadhaar card number. So it is a one to one. One set of entity A is related to one entity of one instance of entity B. So these are two entities. How they are related? One to one. So in many books it is written one and one in the both the side, or sometime in the different books it is related by arrow, और कहीं जगह आपको एरो साइन से इंडिकेट करेंगे. And the next type is one to many. By the word itself you understand one. Said when the one instance of entity A is related to 0, 1 and many instance of entity B. Means एक entity set का one entity set है, वो बहुत सारे entity या तो 0 से या 1 से या many से connected है entity B का. Means अब one person has two मोबाइल नंबर. अब एक स्टूडेंट के पास दो मोबाइल नंबर हो सकते हैं. मीन्स वन स्टूडेंट हैज मल्टीपल मोबाइल नंबर. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वन स्टूडेंट डोंट हैव मोबाइल नंबर. तो क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, 0. एक पर्सन के पास, एक स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं है, एक स्टूडेंट के पास एक ही मोबाइल नंबर है, एंड एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर है. मीन्स वन स्टूडेंट हैज मल्टीपल मोबाइल नंबर, one student has only one mobile number, and it is also possibility that one student don't have any mobile number. That is one to many, that is represented by 1
to many, and it is here it is wrong, that is one to many. So like डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट है, सपोज कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, दैट इज डिपार्टमेंट इज वन डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल एम्प्लॉयज. सो सेम एज इट इज डिपार्टमेंट हैज अ मल्टीपल एम्प्लॉय. और वी कैन से वन कस्टमर हैज टेकन मेनी लोन्स, एक कस्टमर ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, SBI में ओवरड्राफ्ट ले लिया, बहुत सारे, एक मैं कस्टमर हूँ, मैंने बहुत सारे लोन ले लिए. सो क्या हो गया, एक लोन, एक कस्टमर है, पर्सन एक ही है, उसने मल्टीपल लोन्स ले लिए, दैट इज नोन एज वन टू मेनी. नेक्स्ट इज मेनी टू वन, दैट इज द रिवर्स ऑफ अ वन टू मेनी. नेक्स्ट टाइप इज मेनी टू मेनी. मेनी टू मेनी का क्या होता है, व्हेन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी A is associated with 0, 1 and many set of entity set B, and same when one instance of entity B is associated with 0, 1 and many instance of entity A. Opposite many to many क्या मतलब, बहुत सारे एम्प्लॉयज, एग्जाम्पल लेती हूँ कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का लिया मैंने. जो वन टू वन होता है वो किससे बनता है, एवरी रिलेशन, अगर वन टू वन है या मैनी टू वन है या मैनी टू मैनी है, हर रिलेशन, जो भी रिलेशन है वो फर्स्ट आएगा वन टू वन में. देन एवरी रिलेशन शुड हैव वन टू वन, देन ओनली इट शुड कम अंडर वन टू वन, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी. सो एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया मल्टीपल कस्टमर्स, लाइक कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, ठीक है. क्या ले रहे हैं, हमारा क्या ले रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स जो है, या फिर एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लाइक एक एम्प्लॉयज है, ठीक है, वन एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है. सपोज करो एक मैं हूँ, मेरे पास मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, मीन्स मैं किसी प्रोजेक्ट में PI हूँ, मैं किसी प्रोजेक्ट में को PI हूँ, किसी प्रोजेक्ट की JRF हूँ, किसी प्रोजेक्ट की SRF हूँ. मीन्स क्या है, वन एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है, दैट क्या हो गया, मेनी टू वन. एक प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, लाइक स्टूडेंट और टीचर और T1 T2, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2. तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ते हैं, मेनी टीचर्स taught many student, teaches many student, same as it is students are taught by many teachers. यही होता है क्लास में, बहुत सारे एक टीचर आता है, वही स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर से पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं. अब जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा टीचर्स का, तो क्या हो गया, अब मैनी टू वन क्या हो गया, इफ मल्टीपल कस्टमर्स पार्टिसिपेटेड इन सिंगल लोन, बहुत सारे कस्टमर, जैसे प्रधानमंत्री कोई योजना निकाला या कन्या विकास योजना निकाल लिया, तो एक लोन में, लोन हमारे पास क्या है, एक लोन है, बहुत सारे मल्टीपल लोन, एक कस्टमर C1 C2 C3 C4, बहुत सारे कस्टमर्स ने एक पर्टिकुलर लोन के लिए अप्लाई कर लिया, ठीक है, एंड वन कस्टमर टेक मोर देन वन लोन. अब बहुत सारे एक कस्टमर ने बहुत सारे लोन ले लिए, तो क्या हो गया, मेनी टू वन हो गया. बहुत सारे कस्टमर्स ने एक पर्टिकुलर लोन के लिए अप्लाई किया, अब एक कस्टमर ने बहुत सारे लोन ले लिए, तो क्या हो गया, मेनी टू मेनी. सो सेम एज इट इज, वन पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, एवरी रिलेशनशिप फर्स्ट अंडरगो वन टू वन, then it comes under one to many, many to one, and many to many and many to one. So every relationship has one to one relationship. पहले उसका one to one होगा, then वो one to many, many to one and many to one में आएगा. So this is all about the cardinality. Cardinality में क्या होता है, one to one का I have taken this all cardinality I explained with the example. Hope you understand and correlate these examples with your daily life also. So there are in ample amount of examples you can correlate. So these are all about cardinality, and
in the upcoming video I am going to explain one by one as per as the GATE examination. अभी तो मैंने इसमें ये बताया कि 1 to 1 क्या होता है, 1 to many क्या होता है, many to 1 क्या होता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि अगर मेरे पास ये 1 to 1 है, अब मुझे ये 1 to 1 को मुझे रिलेशन में कन्वर्ट करना है. ये तो ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है. अब ईआर डायग्राम को अब मुझे किस में करना है, टेबल्स की फॉर्म में या आरडीबीएमएस रिलेशंस की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है. देन उसमें प्राइमरी की क्या होगी, क्या मैं 1 to 1 को अगर मेरे पास बहुत बड़ा एक ईआर डायग्राम बना दिया तो उसमें मुझे कितने नंबर ऑफ टेबल्स चाहिए. सो दीज आर और मेन ये सारा कंसेप्ट उस क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले मुझे कंसेप्ट्स आना चाहिए कि 1 to 1 क्या होता है, मैनी टू वन क्या होता है, मैनी टू वन क्या होता है और मैनी टू मैनी क्या होता है और इनमें कितने ज़्यादा टेबल्स रहेगा. तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1 to 1. 1 to 1 में प्राइमरी की क्या है, कैन बी एबल टू रिड्यूस द टेबल्स. सो इसमें जैसे पर्सन है, एक टेबल बनेगा, सेकेंड एंटिटी सेट का सेकेंड टेबल बनेगा, तो कितने टेबल्स बनेंगे. सो दिस ऑल आई डिस्कस्ड इन द upcoming videos under this topic only. So hope you understand this concept so that we can relate and correlate and do the numerical questions as per as the UGC and the GATE exam. That's all the today's video. Hope you understand this concept. If you have any doubt in this cardinality, please comment in the comment section box. I will try my best to respond it as early as possible from my side. Thanks. That's all for the today's video.